Good evening, everyone. Uh, am I audible and visible? Let me know, please. Am I audible and visible? So, Vanshika, let me know, please, here. So, today's session is on tips to utilize 1 minute's time for the cue card. Hi, Renu. Good evening. Okay. Thanks for letting me know. Tips to utilize 1 minute's time. For speaking part 2, wherein we are given a question followed by some pointers, and we are supposed to speak for 2 minutes onto the topic, and we have 1 minute as a preparation time with us. Yeah, so it's very important to understand how to utilize this 1 minute's time, what to write, what not to write, and how to keep the keywords on our mind and all. Yeah, before that, let me just tell you, my name is Savayam Prabha. I provide classes at Unacademy. My plus class timings are 11:30 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday. This is my referral code if you are interested to get Unacademy subscription, which is definitely a very good platform, I would say, for IELTS preparation. So many students who are getting benefit, and strategy and tips for all the modules are explained very much in detail. If you join Unacademy using this code, you will be able to get 10% off on the plus subscription charges, and you will be able to attend the sessions of all the educators. Okay. Hi Meet, good evening. Hi Vanshika, good evening. Welcome to the session. So YouTube schedule for this month is today we are having this session, how to prepare for cue card in 1 minute. Tomorrow we are going to have it on effective tips for speaking part 3. 23rd December, how to improve from band 6.5 to 7 in writing, and on 30th December we'll be having session on GT writing task 1. So please make a note. You may take the screenshot of the slide. Yeah. This session is currently going on at Unacademy, and this I'll be starting on 22nd of December. This is a full-fledged course on listening, wherein tips and techniques for each and every type of IELTS question is going to be discussed in detail, so that you could know the strategy, you could know how to get 8+ band score in listening. Yeah, this I've already told. Undoubtedly, this is the best platform for IELTS preparation, because a number of courses are being published every month. General and academic, both trainings are provided, mock tests are being conducted, and if you join Unacademy using my code Shama Arora 10, I'll be evaluating your writing and I'll be taking your speaking sessions also. Yeah. So writing is evaluated during the live session only. You may share, you may do writing every day, you can share in the live session. Yeah. Okay. Let's talk about IELTS speaking part 2 now, and how we need to utilize the 1 minute's time period. Yeah. So in IELTS speaking part 2, you give a talk. Yeah, your talk should be between 1 and 2 minutes. It's your chance to show the examiner how well you can talk for an extended period. So definitely, this 3 minutes time period, 1 minute for preparation, 1 minute for preparation, and then 2 minutes time period which we have for responding, means we have to answer for the cue card, है ना, ये बहुत important है. And to answer for this 2 minutes, we definitely need to understand ये 1 minute का time कैसे utilize करें. Yeah, तो ध्यान से सुनना and keep making notes along with. You may ask in case you have any doubt in between. Yeah, सबसे पहली चीज, understand the topic very well. Sometimes students misunderstand the topic of the cue card and speak irrelevantly, though they speak a lot. Understand the topic very well. You know what happens?
if you are unable to understand the main topic which has been asked and of course the questions which has been asked further, तो उस केस में you deviate from the topic because you haven't understood and you speak anything, even if you cover up your 2 minutes time but you haven't spoken onto the cue card which has been asked, तो band score definitely would be deducted in that case. Yeah, जैसे there's a question about this, describe a skill that you can teach other people. Describe a skill that you can teach other people. तो पहली बात तो we need to think about a skill कि skills क्या क्या होती है ना. तो skills क्या क्या होती है. We can talk about driving, we can talk about communication skills, right? ठीक है, स्विमिंग की बात कर सकते हो, कुकिंग की बात कर सकते हो, है ना. तो सबसे पहले तो वी हैव टू थिंक कि स्किल्स क्या क्या होती है, राइट, विच यू कैन टीच अदर पीपल. इट्स अबाउट यू कैन टीच अदर पीपल. ये नहीं कि आप अभी पढ़ाते हो, आप पढ़ा सकते हो. यू कैन टीच अदर पीपल, तो इसको समझना ज़रूरी है. एंड देन दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड. व्हाट इट इज़, हाउ यू लर्नड इट. तो you have to speak about this question also, how you learned it, how can you teach others the skill, and how do you feel about this skill. Make sure to cover each and every question which has been asked, क्योंकि यहाँ पे mostly it is written you should say, है ना. तो मतलब आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए. what it is, how you learned it, how can you teach others this skill, how do you feel about this skill. yeah, अभी इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट द स्टूडेंट्स डू, दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ स्किल विच दे लर्न. सपोज दे आर स्पीकिंग अबाउट कुकिंग, तो दे मेनली कवर द क्यू कार्ड ऑन टू दिस थिंग. एक तो ये स्पाइडर डायग्राम भी बनाना चाहिए. लेट यू नो फर्दर हाउ कुकिंग है सपोज आपकी स्किल विच यू लर्नड इन द पास्ट. या so most of the students pay much more attention on to answering this question and very less attention on to this thing, क्योंकि देखो मेन क्वेश्चन ये है, इसको समझना जरूरी है एंड वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, है ना. जो ये टॉप पे होता है ना, दैट्स द मेन क्वेश्चन. ये हमें पॉइंटर्स दिए होते हैं विच वी हैव टू इंक्लूड. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी मच इन डिटेल, राइट. तो उसके लिए एक तो ये चीज़ मैंने बताई कि क्वेश्चन को व्हाट यू कैन डू, जैसे यहाँ पर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. अ स्किल, सबसे पहले स्किल सोचो विच यू कैन टीच अदर पीपल, राइट, एंड देन यू हैव टू आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस. सो बाय मेकिंग अ स्पाइडर डायग्राम वी कैन प्रिपेयर ऑन दिस, राइट. आई लेट यू नो फर्दर हाउ. ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ तो ये दैट आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्पीक ऑन टू द टॉपिक एंड सीक्वेंस में बोलना है. बट वन मोर थिंग कि इसके अलावा एनीथिंग एल्स कैन ऑल्सो बी एडेड रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, जैसे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना टाइम लगा आपको सीखने में. ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है बट स्टिल वी कैन आंसर फॉर दिस. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, है ना. मे बी यू कैन से इट टुक मी अराउंड 6 month टाइम टू अंडरस्टैंड एंड यू नो इम्प्लीमेंट, right, implement it well. yeah, so of course we can answer anything else also but related to this main cue card, जो ऊपर हमसे cue card पूछा गया उसी से related. and what I have told, you can of course answer these questions जो आपसे you should answer, not you can answer, you should answer these questions जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. fine, I hope everybody is getting this. yes, Vanshika, Meet, Renu, Rahul. yeah, okay, now understand the topic very well. okay, so do you all have a list of the cue cards which are generally asked in the final exam? सबके पास है. एक ये चीज़ बहुत important है, एक तो understanding the topic very well, है ना. अब sometimes it happens when you're in the final examination, you are getting a topic which you have never read about before, आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो it becomes sometimes difficult to understand and to you know what idea should be spoken there, right. तो एक list है cue cards की, right, you all must have that list, and उसमें से what you can just think of what to be answered, right. my suggestion would be to not to copy the answer from the book as it is, right. sometimes students what they do, they answer as it is from the book, or sometimes you know internet पे आपको बहुत सारी इस तरह की answers, sample answers available हो जाते हैं, and you cram that stuff, you know. क्रैमिंग से बैंड्स को डिडक्ट हो जाएगा. डोंट गो फॉर क्रैमिंग, बट येस, अगर जैसे 70 to 80 टॉपिक्स हैं उसमें, है ना. अब 70 to 80 टॉपिक्स के लिए यू कैन एटलीस्ट यू नो मेक सम आइडियाज, हैव सम आइडियाज. जैसे अगर हम इसी की बात करें, डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू कैन टीच अदर पीपल, दिस इज इन दैट फाइल ओनली, राइट. तो अगर ये स्किल के बारे में टॉपिक है, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लूँ कि आई विल स्पीक अबाउट कुकिंग देयर, है ना.
तो half the job is done already, because I need not spend time on to thinking what skill should I talk about. Yes guys, please let me know if you all are getting, है ना. तो पहले से ही ये चीज रेडी रखो कि किस टॉपिक में मैं क्या बोल सकते हूँ, राइट. मैं क्या बोल सकता हूँ. तो मैंने जैसे सोच लिया कि आई विल बी स्पीकिंग अबाउट कुकिंग हियर, तो हाफ द जॉब इज डन. नाउ आई नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन टू डिसाइडिंग व्हाट स्किल आई नीड टू टॉक अबाउट, बिकॉज आई ऑलरेडी डिसाइडेड कि अगर मेरे पास ऐसा कोई क्यू कार्ड आता है तो आई विल हैव टू स्पीक ऑन कुकिंग. यस, सो इस तरह से हर टॉपिक के ऊपर यू कैन थिंक अबाउट, यू कैन डिसाइड, यू कैन फिक्स द आइडियाज कि मुझे ये चीज बोलनी है, बट डोंट क्रैम द टॉपिक्स फुली, राइट. ओके, so this is done, this I've explained. Now quickly think of the ideas about which you have to speak that you can elaborate further at the time you speak. एक तो ऑफ कोर्स जैसे हमने यहाँ पर स्किल डिसाइड कर लिया कि कौन सी स्किल विल बी स्पीकिंग, है ना, विल बी स्पीकिंग अबाउट. उसके अलावा यू नो, एज आई हैव शोन यू, देयर आर 3 to 4 क्वेश्चंस, है ना. अब व्हाट आई हैव सेड, यू शुड आंसर ईच वन ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. सारे क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए, बट इट डजंट मीन दैट यू कैन आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस ओनली. यू कैन आंसर अ फ्यू अदर क्वेश्चंस. आई विल बी शोइंग यू फर्दर कि किस तरीके से वी कैन ईजिली cover up our 2 minutes time, लेकिन वो सारी की सारी strategy of course we have to make in 1 minutes time only. ठीक है, कि क्या क्या बोलेंगे. तो understanding the topic very well, right, हर part को समझो, and of course the questions also, right. Quickly think of the ideas about which you have to speak that you can elaborate further at the time you speak. Okay, next is note down keywords, being more specific as per the questions, such as what, when, where questions. Okay, so we should make a circle like this, है ना. स्पाइडर डायग्राम इस तरह से बना के, ठीक है. अब जैसे यही वाला टॉपिक है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें अगर इस तरीके से हम एक स्पाइडर डायग्राम बनाते हैं, तो आई राइट दिस फर्स्ट क्वेश्चन हियर, आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. कुकिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ यू लर्नड इट, आई लर्नड इट फ्रॉम माई मदर, ठीक है. मैंने यहाँ पर लिख लिया सिंपली इतना. मैं ये नहीं लिखूंगी आई लर्नड इट फ्रॉम माई मदर, बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच टाइम, वी हैव 1 minute टाइम ओनली. तो मेक श्योर टू राइट द कीवर्ड्स ओनली. तो व्हाट हैव रिटन, माई मदर. अब मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर सकती हूँ, सो दैट आई कुड इलेबोरेट इट फर्दर. आई ज्वाइन कुकरी कोर्स, मैंने कुकरी कोर्स भी ज्वाइन किया इसके लिए. व्हाट हैव रिटन, कुकरी कोर्स, दैट्स इट, राइट. सो अंडरस्टैंड कि आइडियाज ही लिखने हैं. तो माई मदर and I joined a cookery course also. I can tell further about the cookery course. It took me around 6 months time, या फिर the course was for 2 months or 3 months, whatever the time you want to say about. Yeah, how can you teach others this skill? अब next question है, आप ये skill दूसरों को कैसे बढ़ा सकते हो. तो by of course giving classes to them, है ना. आप क्लासेस दे सकते हो. मे बी यू कैन थिंक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. आई हैव जस्ट रिटन 1 word here, ऑनलाइन क्लासेस, राइट. तो नाउ आई कैन से लाइक आई विल बी मेकिंग अ बैच ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम मी. अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी आस्क्ड दैट दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस स्किल, राइट, फ्रॉम मी. सो इस तरीके से आप 1-2 कीवर्ड्स लिखोगे, बट यू विल बी एबल टू मेक 3 to 4 sentences easily when you will start speaking about that. ठीक है. हाउ डू यू फील अबाउट दिस स्किल. तो फीलिंग में कुछ एडजेक्टिव्स हमें यूज करने हैं, जैसे प्राउड इज अ वेरी गुड वर्ड टू बी यूज्ड हियर, है ना. प्राउड फील करती हूँ दैट आई नो हाउ टू कुक वेल, है ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है. तो यहाँ पर 1-2 एडजेक्टिव्स लिखकर दिस टाइप, यू नो, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग. या ओके अनमोल, वंशी, या आर यू गेटिंग हाउ टू. जस्ट सिंपली एक ऐसे स्पाइडर डायग्राम बनाओ, उसके आसपास हर क्वेश्चन के 1-1, 2-2 कीवर्ड्स में आंसर दे लो, बस. ठीक है. डोंट राइट टू मच बिकॉज यू डोंट हैव दिस मच टाइम. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, अगर आपको इससे रिलेटेड, जैसे आज भी हमने क्लास में वंशिका, यू रिमेंबर, लाइक वी डिस्कस्ड फूड रिलेटेड वोकैबुलरी, है ना. अब अगर मैं कुकिंग की बात कर रही हूँ तो फूड रिलेटेड यहाँ पर वोकैब वर्ड्स आ सकते हैं. तो आई कैन मेक नोट्स ऑफ दोज वर्ड्स हियर नाउ. 3-4 वर्ड्स अगर हम लिख लेंगे तो इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट. सो 1 minute के टाइम में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स. लेकिन वो नोट्स कैसे बनाने हैं, ऐसे नहीं दैट यू आर मेकिंग इट इन पैराग्राफिंग फॉर्म. नो, दैट इज नॉट हेल्प यू, बिकॉज पैराग्राफिंग फॉर्म में आप कुछ भी ज़्यादा नहीं लिख पाओगे. तो मेक अ स्पाइडर डायग्राम, पुट द एरोस एंड देन दिस राइट 2 to 3 कीवर्ड्स हियर. बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं लिखने, ओनली 2 to 3 कीवर्ड्स, सो दैट
you know, when you have to start speaking, आप इन keywords को देखो and you speak 3 to 4 lines on each one of them, ठीक है. तो you should know how to elaborate. ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने सिर्फ एक दिन, जैसे मैंने यहाँ आपको सिंपल से एग्जाम्पल दिया, अब आई हैव रिटन माई मदर, तो अपनी मदर के बारे में हाउ डिड यू लर्न, व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग, लॉट मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, है ना. तो यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस इजिली वी कैन मेक ऑन टू दिस, हाउ डिड आई लर्न इट फ्रॉम माई मदर. फाइन, ओके. नेक्स्ट इज, yeah, so this I've already told. Note down keywords, being more specific as per the questions. More specific, है ना, कि what में कौन से skill है, simply इतना लिखो cooking skill. No need to write much about it. When, around 6 months back, around 5 years back, whatever, right? Where, right? तो इस तरीके से just in 1 or 2 keywords you should answer here. Fine, okay. Examiner may be looking at your sheet at the time you're writing the keywords. Do not feel nervous or conscious. Just focus on the cue card. अब कई बार क्या होता है, some of the students say when they appear for the test, you know, they say कि मैम I couldn't utilize my 1 minute's time. I started making notes, but then I got conscious because examiner was looking at my sheet. Yeah, so I was like, you know, very hesitated because of this, and I couldn't make notes, and because of that I couldn't speak well. It also happens. Sometimes students say this thing. You know, even if the examiner is looking at your sheet, how does it matter? Your marking is going to be done on the basis of whatever you will speak up there. जो आप बोल के आओगे उसके बेसिस पे. ऐसे नहीं कि अगर एग्जामिनर आपकी शीट की तरफ देख रहे हैं तो यू हैव टू गेट कॉन्शियस एंड उसकी वजह से आपका बैंक स्कोर डिडक्ट. मतलब अगर आप एग्जामिनर देख रहे हैं, उन्होंने देखा आप अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे हो, तो डू यू थिंक आपके मार्क्स वो इस बेसिस पे डिडक्ट कर लेंगे? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, क्योंकि इट्स गोइंग टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीकिंग यू आर गोइंग टू डू देयर. जो भी आप कम्युनिकेट, जो भी आप बोल कर आओगे, स्पीक करके आओगे, उसी के बेसिस पे बैंक स्कोर मिलेगा. तो प्लीज 1 मिनट का टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करो विदाउट लुकिंग एट द एग्जामिनर कि वो क्या कर रहे हैं. गेटिंग? ओके. राइट द कीवर्ड्स क्लियरली. ये भी प्रॉब्लम है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे मेक नोट्स ड्यूरिंग 1 मिनट्स टाइम बट दे डू नॉट लुक एट द नोट्स व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग. अब अगर आपने नोट्स बना लिए, सपोज मैं ऐसे नोट्स बना रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर, नाउ कैन यू अंडरस्टैंड? नो, दिस वर्ड कांट बी अंडरस्टूड. नाउ लिखा है मैंने कुकिंग, है ना, लेकिन मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या वर्ड लिखा यहाँ पर. इट हैपन्स विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स, दे से कि नोट्स बनाते हैं हम, बट क्योंकि बहुत फास्ट बोलना होता है, वी हैव टू मेक आई कॉन्टेक्ट एंड बहुत कम हम शीट पे देख पाते हैं. देखो आपको क्या होता है कि जो आपका 1 मिनट का टाइम है, उसके लिए यू आर गिवन अ शीट देयर, शीट, अ पेपर, ठीक है, एंड साथ में आपको पेन या पेंसिल मिलता है सो दैट यू कुड मेक नोट्स ऑन दैट. फाइन. तो जब आप 1 मिनट के टाइम पे नोट्स बना रहे हो, डेफिनेटली यू कैन यूज दोज नोट्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आप उनको देख सकते हो, बट बाय मेकिंग आई टू आई कॉन्टेक्ट. आई टू आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू स्टेयर द एग्जामिनर एंड यू कांट लुक एनीथिंग एल्स एट ऑल. 2 मिनट्स के टाइम के लिए मोस्टली आपको एग्जामिनर की तरफ देखना है, लेकिन बीच बीच में आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हो, वट एवर द नोट्स हैव मेड. लेकिन आप हेल्प तभी ले पाओगे इफ़ यू हैव रिटन द वर्ड्स क्लियरली. अगर आपने वर्ड्स ऐसे लिख दिए विच यू कांट अंडरस्टैंड, यू विल गेट इवन मोर कन्फ्यूज्ड. आप यहाँ पे देखोगे आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू विल हैव टू स्टॉप फॉर सम सेकेंड्स देयर, है ना. तो उसमें बैंक स्कोर और डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज यू आर टेकिंग पॉज इन बिटवीन विच इज़ नॉट टू बी डन. येस वंशिका, Anmol, I hope you all are getting. Yes, you need to make eye contact for sure, Anmol. आई कॉन्टेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए. किसी भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस शो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दैट वी मेक आई टू आई कॉन्टेक्ट. बट आई हैव अगेन सेड इट डजंट मीन दैट यू हैव टू कीप स्टेयरिंग, है ना. तो आप अपने नोट्स की डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो, लेकिन हेल्प तभी ले पाओगे इन केस यू राइट द कीवर्ड्स क्लियरली. अगर आपने कीवर्ड्स को क्लियरली नहीं लिखा, यू विल गेट इवन मोर पजल्ड, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि मैंने क्या लिखा था, क्या बोलूँ, राइट. या डू नॉट राइट देम वेरी स्लोली and try covering basic points of all the questions in the cue card, right. बहुत slowly नहीं लिखना क्योंकि 1 मिनट पता भी नहीं चलता कैसे ओवर हो गया, है ना. अब उसके लिए definitely you should be in the habit of writing, you should be in the habit of making notes every day when you do speaking practice, either with your friends or your teachers, right. तो ये नहीं कि सीधा फाइनल एग्जाम में ही 1 मिनट को यूटिलाइज करेंगे, नो, राइट. जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप अपने किसी पार्टनर के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी टीचर के साथ स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 1 मिनट के टाइम को प्रॉपरली ऐसे ही यूटिलाइज करो बाय मेकिंग नोट्स लाइक दिस, सो दैट यू कुड बी हैबिचुअल ऑफ दिस, है ना. आपको आदत हो जाए एंड फाइनल एग्जाम में इन दैट केस इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक नोट्स लाइक दिस विद इन अ मिनट्स टाइम एंड टू यूज देम व्हाइल स्पीकिंग.
ठीक है. या always look for ideas on the topic from your familiarity itself, which would make you feel easy and comfortable to find content for speaking. तो जो भी आप आइडियाज़ ढूंढते हो, अब जैसे मैंने आपको सिंपली ये स्किल वाला टॉपिक बताया है ना, राइट. तो अपनी फैमिलियरिटी, मतलब अगर आपने कुकिंग सीखा हुआ है या आपने ड्राइविंग सीखा हुआ है तो, या स्विमिंग सीखा हुआ है, अगर आपको कोई इनमें से स्किल आती है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू स्पीक अप ऑन दैट, इजंट इट. अब मुझे कुकिंग आती है तो आई कैन डेफिनेटली स्पीक अबाउट दिस. अगर मुझे नहीं आती तो आई वोंट बी एबल टू स्पीक मच, है ना, राइट. आई स्ट्रगल टू स्पीक अप द आइडियाज़ फॉर दिस, इजंट इट. तो जो आपको स्किल ऑलरेडी आती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आइल्स एस्पिरेंट्स हैं जिनको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है. तो ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग स्किल की बात करते हो कि मे बी यू कैन टॉक अबाउट योर सिस्टर, योर ब्रदर, एनीबडी इन योर फैमिली इज आस्किंग यू टू टीच दिस स्किल, है ना, तो यू कैन स्पीक दिस वे. हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग, रेनू इज आस्किंग. रेनू, स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला तो do regular practice of speaking with maybe anybody in your family or any IELTS aspirants, like the students who are preparing for IELTS, है ना, किसी के साथ भी at least half an hour to 1 hour, 30 minutes से 1 hour, 60 minutes का टाइम every day you should spend on to speaking with others, है ना. एक तो सबसे अच्छा तरीका ऑफ कोर्स यही वाला है. सेकेंड थिंग, अपने आप रिकॉर्ड कर सकते हो आप. टेक एनी टॉपिक, रिकॉर्ड इट, ठीक है, एंड देन लिसन टू इट कि आपने क्या मिस्टेक्स करी एंड व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन टू, ठीक है. टीचर से, कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से, लाइक एनी एक्सपीरियंस टीचर, द वन हु कैन गाइड यू वेल, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग इफ यू कैन हैव पर्सनल सेशंस ऑन दैट, है ना. यस अनमोल, वॉचिंग मूवी, लेकिन ये ठीक है, मतलब लिसनिंग स्किल्स है, राइट. बोलने के लिए डेफिनेटली जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे थिंक कि हम सिर्फ आइडियाज़ रीड कर लेते हैं फ्रॉम इंटरनेट और समवेयर एल्स, राइट, एंड विल बी एबल टू स्पीक वेल. नो, आप जब तक बात नहीं करोगे दूसरों से, जब तक आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ गुड होल्ड ऑन टू इट, राइट. तो यू शुड डू स्पीकिंग प्रैक्टिस विद अदर्स ऑन रेगुलर बेसिस, राइट, ठीक है. इंग्लिश में जितना बोलोगे उतना बेनिफिशियल इट विल बी, उतना कमांड अच्छा आपका स्पीकिंग पे होगा. Fine. Okay, so always look for ideas on the topic from your familiarity itself, which would make you feel easy and comfortable to find content for speaking. Start imagining the situation or creating a picture in your mind to get better ideas. Yeah, this is also a very good thing, है ना. अब जैसे if there is a cue card, describe an occasion when you couldn't use your mobile phone, ठीक है. अब मुझे बोलना है सेमिनार के बारे में. अब बेटर अगर मैं एक पिक्चर अपने माइंड में बना लूँ कि सेमिनार की पिक्चर है, राइट, जिसमें ऑफ कोर्स यू नो देयर वर इंस्ट्रक्शंस दैट वी कांट यूज आवर मोबाइल फोन्स व्हाइल द सेमिनार इज गोइंग ऑन, है ना. तो जब आप पिक्चर एक अपने माइंड में बना लोगे तो आप बहुत अच्छे से यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन टू दैट, है ना. तो ये दोनों चीज़ें, एक तो मैंने क्या बताया, जो भी आप आइडियाज़ बोलते हो, टॉपिक जो भी आप डिसाइड करते हो, दैट शुड बी फ्रॉम योर फैमिलियरिटी. पहली बात फैमिलियरिटी से होना चाहिए. इफ इट इज़ नॉट, ट्राई टू मेक अ स्टोरी ऑन दैट. लेकिन स्टोरी बनाने के लिए यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ स्टोरी टेलिंग, है ना, राइट. आप हैबिचुअल कैसे बनोगे? व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, व्हेन यू विल स्पीक अप ऑन रेगुलर बेसिस. जब आप डेली कोई ना कोई स्टोरी बनाओगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू, राइट, ठीक है. एंड अनदर थिंग जो मैंने शुरू में ही बताया, जो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे सैम्पल आंसर्स मिलते हैं या बुक्स में सैम्पल आंसर्स मिलते हैं, डोंट गो फॉर देम, डोंट क्रैम देम एज इट इज, बिकॉज these topics as it is are going to be spoken by lot many students and examiners are intelligent enough to know कि आप natural speaking कर रहे हो या आपने कुछ क्रैम किया हुआ है, क्योंकि जब आप क्रैम करके बोलते हो तो वो natural नहीं लगता, है ना, right. So यहाँ तक I hope it's clear. You may write down some vocabulary and idioms and that you can use while speaking. तो 1 minute के टाइम पीरियड में पहली बात तो मैंने बोला ये चीज़ आपको करनी है ना. मेन टॉपिक बीच में लिखो एंड सिर्फ 2-3 कीवर्ड्स फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस, फाइन. उसके अलावा जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड वोकेबलरी आपके माइंड में आ रही है या इडियम्स माइंड में आ रहे हैं, राइट देम डाउन, ठीक है. लेकिन ये सारा कुछ क्लियरली लिखना है, बहुत क्लियरली, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एंड जब आप बोलना शुरू करते हो,
ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद द एग्जामिनर एंड इन बिटवीन जैसे ही आपने एक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 सेंटेंसेस में कर लिया, फटाफट से लुक एट द, जैसे आपको लगा कि नाउ दिस इज अबाउट टू बी ओवर, मैंने फर्स्ट कीवर्ड्स पे बोल दिए, फटाफट से हैव अ लुक एट द नेक्स्ट कीवर्ड, ताकि आपको ध्यान रहे कि येस नाउ हैव टू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. येस, क्लियर सबको? When you are done writing keywords, give a glance at once and then speak when the examiner asks. अच्छा, ये भी एक ना, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they don't like preparing for the topic in 1 minute's time and they ask the examiner, can I start speaking? That is also not a good thing. When you are given a minute's time, utilize that minute's time, okay? ठीक है, जो आपको 1 minute का टाइम मिला उसको यूटिलाइज करो. It happens like many a times with me also. कई बार स्टूडेंट्स अपना स्पीकिंग देते हैं, I ask them to prepare the topic for a minute's time, but sometimes they ask कि can we start speaking, can I start speaking? That's not a good thing, okay? ठीक है. How many idioms? Nothing as such need, not fixed कि इतनी idioms use करनी है. Idioms जितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं use करनी है, of course ऐसा नहीं कि हर sentence में आप idiom use कर रहे हो, but nothing as such कि कितना एक fixed number है. No. अगर आप 4 से 5 टोटल यूज़ कर पाओ पूरे उसमें, तो भी लाइक एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू डू इट, है ना. उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स नॉट अ फिक्स नंबर फॉर दिस. ठीक है मीट, या ज़्यादा भी अराउंड 10 भी बोल सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि उसमें ईडियम्स ही नज़र आ रहे हैं एंड स्पीकिंग कम, मतलब वो कैब एंड अदर थिंग्स आर लेस एंड सिर्फ ईडियम्स ही है, क्योंकि वो बहुत फिर इनफॉर्मल हो जाएगा. ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर नॉट काउंटेड इन फॉर्मल राइटिंग एंड स्पीकिंग. ठीक है, आइल्स का टेस्ट इज अ सेमी फॉर्मल टेस्ट, तो हम बीच में ईडियम्स एंड फ्रेजेस डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं कि हर सेंटेंस में हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं. फाइन मीट, ओके. या डिसाइड व्हाट टू टॉक अबाउट क्विकली. दिस इज द रॉन्ग वे. क्या, सपोज द टॉपिक इज अबाउट योर फेवरेट टीचर, spending your preparation time thinking about who your favorite teacher was, that is something very wrong, isn't it? मतलब 1 मिनट का टाइम मिला एंड टॉपिक बहुत सिंपल है, योर फेवरेट टीचर यू हैव टू स्पीक ऑन टू. या अब स्टूडेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कई बार, कौन से टीचर के बारे में बोलूँ. शैल आई स्पीक अबाउट मिस सीमा हु टॉट मी इन 10+2? नो, आई थिंक अंजलि मैम वॉज बेटर हु टॉट मी इन 10th स्टैंडर्ड. गेटिंग? ऐसे नहीं टाइम वेस्ट करना. ये सोच के तो आपने सारा टाइम तो यही सोचने में ही वेस्ट कर दिया कि कौन से टीचर के बारे में बोलो. क्विकली थिंक ऑफ अ टीचर. मे बी आप कोई नेम भी बना सकते हो, है ना. ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली गो टू योर कॉलेज और स्कूल और टू योर होम टू चेक कि सच में वो आपके फेवरेट टीचर थे, या यू नो दे आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली गो फॉर दिस थिंग, राइट, चेक करने के लिए. या यहाँ पर मेन चीज़ आपके आइडियाज़ चेक होने हैं, आप लेंथ पे कैसे बोल पाते हो वो चीज़ चेक होनी है ना. हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़, वो चीज़ें चेक होती है. ठीक है, लैंग्वेज का कितना अच्छा आप यूज़ कर पा रहे हो. ठीक है, तो आइडियाज़ सेकेंडरी है, बट इट डजेंट मीन कि आप आइडियाज़ को ध्यान ही ना दो. पहली चीज़ डेफिनेटली लैंग्वेज है. यहाँ पर आप किस तरीके से अच्छी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, राइट. बट एट द सेम टाइम आइडियाज़ भी मैटर करते हैं, तो वी हैव टू बी ऑन टू द टॉपिक. ये नहीं कि टॉपिक कुछ और पूछा आप कुछ और बोलते जाओ, राइट. तो उस केस में भी बैंस को डेफिनेटली डिडक्ट होगा ना, राइट. एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन टू थिंकिंग व्हाट टू स्पीक ऑन टू. एंड उसके लिए मैंने पहले ही बताया, व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ द क्यू कार्ड्स, आपको ऑलरेडी पता है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड पहले ही सोच के रखो कि मैं सोच के रखो का मतलब अगेन आई एम सेइंग ये नहीं कि क्रैम कर लो पूरा का पूरा टॉपिक. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सोच के रखो सिंपली. जैसे यहाँ पर अगर मैं सोच लूँ कि आप टू स्पीक अबाउट मिस सीमा हु टॉट मी इंग्लिश इन 12th स्टैंडर्ड. अब मेरा काम बहुत सॉल्व हो गया, सॉर्टेड आउट है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि मुझे अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है इनटू थिंकिंग कि कौन से टीचर के बारे में बोलना है, उन्होंने क्या पढ़ाया था, कौन सी क्लास में पढ़ाया था, ये मैंने ऑलरेडी सोच लिया. नाउ इट वुड बी मच ईजी फॉर मी टू यूटिलाइज माई 1 minute's टाइम एंड टू मेक नोट्स. ठीक है मीट, वंशिका, रेनू, अनमोल, आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, राइट. सो नाउ टेल मी इन केस यू हैव एनी डाउट्स. 2 स्ट्रैटेजीज हैं, इनको नोट कर लो. एक ये वाली स्ट्रैटेजी जिसमें आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन पहले बोल सकते हो, देन उसका पास्ट डिस्क्रिप्शन, राइट, देन प्रेजेंट में डिस्क्राइब करोगे, देन ओपिनियन एंड देन फ्यूचर. ठीक है, टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, पास्ट, डिस्क्रिप्शन इन प्रेजेंट, योर ओपिनियन ऑन टू दिस, एंड फ्यूचर में
उससे रिलेटेड, फाइन। और दूसरी है जिसमें 5 W's and 1 H कैन बी आंसर्ड। लेकिन इससे भी बेटर क्या चीज़ है जो मैंने बताई, ये दोनों अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन वो जो जिसमें सिंपली आप इस तरीके से जो भी आपके पास 4 या 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ठीक है, तो मेन क्वेश्चन उसको यहाँ पे बीच में लिखो एंड देन उसके कीवर्ड जस्ट इन 2 to 3 वर्ड्स यू शुड कीप राइटिंग हियर। along with that you should write vocabulary, idioms and phrases in case you know any, and when you start speaking have a look at the keywords also, have a look at the vocabulary and idioms also. At the same time you need to make eye contact with the examiner, ठीक है, yeah. So now tell me in case you want to ask anything, if you have any doubt. Plus students, will see you tomorrow in the plus class at 11:30 a.m. wherein I'm going to take your speaking mock test, right? So these are my class timings, 11:30 a.m. to 1 p.m. and this is my referral code in case you are interested to get your writing and speaking evaluated and to know the strategy and tips for each and every module in detail. Join Unacademy using this code ShamaArora10. Okay, you'll get 10% off on this. Way to download the idioms and more. मैंने अभी जो speaking course चल रहा है उसमें काफ़ी सारी idioms and phrases are given to students. I'll share a list with you. अभी तो Unacademy Educate ऐप के थ्रू भी we can contact you guys, है ना? So I'll see उसमें कैसे share करते. I'll check and then I'll share. Unacademy ऐप के थ्रू भी we can share the study material with you guys, ठीक है? I'll check and share. So please note कर लो, and tomorrow we are going to have a session on effective tips for speaking part 3 at the same time 5:30 p.m. पे. See you tomorrow. Yeah. Okay. So this course on listening is going to be started on December 22nd. ठीक है? So the students who are struggling to score 7+ in IELTS listening, ठीक है, they must join the course and for that you need to get Unacademy subscription, and Unacademy subscription के लिए don't forget to use this code ShamaArora10, ठीक है? चलो, if you have liked the session, if you have understood something, don't forget to subscribe for the channel and don't forget to like this. Click on the like button, yeah. Chalo, all right guys, okay, bye bye, see you tomorrow at 5:30.